A very good morning to you all. Welcome back to our today's video. In our last classes and session regarding few important topics that we discussed in last two sessions were the concept of niche, competitive exclusion, competitive coexistence, and a little I discussed about character displacement and resource partitioning in the terms, but today we will be discussing the details of character displacement and resource partitioning that are really an important topic from competitive point of view, just the way concept of niche and competitive exclusion have been important. It will be really helpful for the entrances exam, as well as if you have to write somewhere about the details or the definitions of these terms, then you may write after going through today's session. So now we have resource partitioning and character displacement that are totally related to the concept of niche that we studied in the last class. नीश के बारे में हमने बात की थी कि हैबिटेट में किसी ऑर्गेनिज्म का जो रोल होता है दैट इज टर्म्ड एज नीश. तो उस नीश की बात करते हुए वी स्टडीड दैट we have the terms given by Joseph Grinels where he gave the definition of niche. We studied what is habitat, how the niche and habitat are equally dependent on each other. Then we studied different types of niche where we read about the spatial and habitat niche and the trophic niche. Then we studied about the multi-factor और hyper volume niche, जहाँ पे हमने बात की कि अगर बहुत सारे वेरिएबल्स ले लिए जाएं और उन वेरिएबल्स को प्लॉट कर दिया जाए ग्राफ पे तो किस तरह का ग्राफ हमारे पास आएगा और उसमें किस तरह की टर्म्स हमारे पास प्रेजेंट होंगी. फॉर एग्जाम्पल वी हैव the realized niche and the fundamental niche in the graph. Then we studied, I gave you the idea about the niche overlapping region, as well as I discussed about the niche width or breadth. This graph we discussed in the last class, जहाँ पे हमने बात की थी कि वो एरिया जहाँ पे नीश ओवरलैप करेंगी वो बीच वाला एरिया होगा और फंडामेंटल नीश का एरिया कौन सा होगा, लेकिन जब एक्चुअल नीश की बात होगी तो एरिया कम हो जाएगा और रियलाइज नीश आ जाएगी. Now, talking about today's topic, we have two terms, that is resource partitioning and the character displacement. First one is resource partitioning. What is resource partitioning? Differentiation of niche both in space and time that enables similar species to coexist in a community. नीश का डिफरेंशिएशन हो जाना उसके स्पेस और टाइम दोनों में, जिसकी वजह से सिमिलर तरह के जो स्पीसीज किसी कम्युनिटी में रह रहे हैं वो को एग्जिस्ट कर सकें, दैट इज नोन एज रिसोर्स पार्टीशनिंग. कहने का मतलब क्या है, नीश की जो डिपेंडेंसी है वो किस किस चीज पे हो रही है, ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द हैबिटेट. वहां पे ही तो डिपेंड कर रहा है ना कि नीश किस तरह का है. तो उन रिसोर्सेज को एक तरीके से पार्टीशन कर लिया. टर्म बताती है रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या है, रिसोर्स का पार्टीशन हो जाना. कैसे और कब? बोथ इन द स्पेस एंड टाइम दैट enables सिमिलर स्पीसीज टू coexist इन अ कम्युनिटी. किसी एक ही कम्युनिटी में डिफरेंट तरह के स्पीसीज रह रहे हैं जो एक दूसरे से सिमिलर हैं, उनको अगर कंपिटिटिवली एक दूसरे को एक्सक्लूड नहीं करना है, कंपिटिटिव को एग्जिस्टेंस करनी है, एक दूसरे के साथ ही वहां पे रहना है, तो उनको उस नीश में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, उस नीश के स्पेस में भी और टाइम में भी. कहने का मतलब उस रिसोर्सेज को जिस तरीके से यूज करेंगे, जैसे उनका रोल प्ले करेंगे, उस वो टाइम भी डिफरेंट होना चाहिए, एज वेल एज जिस जगह पे वो रह रहे हैं उसके अंदर भी उनको कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी उनके नीश का डिफरेंशिएशन हो पाएगा. दिस इज व्हाट वी मीन बाय रिसोर्स पार्टीशनिंग. टेकिंग एन एग्जांपल,
adaptations of some insect eating bird species to reduce competition by feeding in different portions of the same tree species and by feeding on different insect species. बहुत सारे इंसेक्ट ईटिंग बर्ड स्पीसीज होते हैं, उनकी एडेप्टेशन जो होती है आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रिसोर्स पार्टीशनिंग. कैसे होता है? बाय फीडिंग इन डिफरेंट पोर्शंस ऑफ सेम ट्री स्पीसीज. मतलब एक ही पेड़ पे इंसेक्ट के जो स्पीसीज रह रहे हैं वहां पे उनको जब वो फीड करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट स्पीसीज पे फीड कर लें, या फिर ट्री के ही डिफरेंट पोर्शंस पे फीड कर लें. इंसेक्ट्स तो ट्री के ऑल ओवर द ट्री जहां पे भी वो बर्ड्स रह रहे हैं, इंसेक्ट्स तो ऑल ओवर द ट्री ही दे आर लिविंग. तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस पे अगर वो फीड कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास, लेट्स अज्यूम दैट यू हैव दिस ट्री. यहां पे क्या हो रहा है कि आके एक बर्ड को, ये कोई बर्ड है, दिस इज अ बर्ड, जिसको इस ट्री के ऊपर क्या करना है? फीड करना है. ये जो हमने ट्री बनाया है इसके ऊपर इस बर्ड को फीड करना है. सो रिसोर्स पार्टीशनिंग के केस में इसको कैसे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि मान लो एक बर्ड ये है, ऐसे ही चलो हम पहले ट्री के पोर्शंस बना देते हैं. यहाँ पे इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं, ये एक ट्री का पोर्शन हो गया, ये ट्री का दूसरा पोर्शन हो गया, यहाँ पे भी बहुत सारे इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं, ये ट्री का कोई थर्ड पोर्शन है, यहाँ पे इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं, ये ट्री का कोई फोर्थ पोर्शन है. ठीक है, अब हमने बात की थी बर्ड्स की. तो मान लो कि आपके पास बहुत सारे बर्ड्स प्रेजेंट हैं. ये एक बर्ड हो गया, ये दूसरा बर्ड आपके पास आ गया. डोंट गो ऑन द ड्राइंग्स, दीज आर जस्ट द रफ डायग्राम्स. ओके, अब ये बहुत सारे बर्ड हैं. तो एक तो ये होगा कि ये वाला बर्ड जाके इसके ऊपर अटैक करे, ये बर्ड भी इस पे अटैक करे, ये बर्ड भी इस पे अटैक करे, ये भी इस पे अटैक करे. सेम जो स्पीसीज है ट्री का उसके ऊपर जाके सब अटैक करेंगे. ठीक है, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? उससे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि कोई रिसोर्स पार्टीशनिंग का केस तो होगा नहीं, क्योंकि कंपिटिटिवली एक दूसरे को फिर वो एक्सक्लूड करने लगेंगे, क्योंकि सब एक ही जगह पे जाके ही तो अटैक करना शुरू हो गए ना. ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा? अगर आपको को एग्जिस्टेंस करनी है, रिसोर्स पार्टीशनिंग की मैं बात करूं, को एग्जिस्टेंस करनी है, तो बहुत सारे बर्ड्स को इस ट्री के डिफरेंट पोर्शंस के ऊपर जाके अटैक करना पड़ेगा. अब वो कैसे होगा? लेट अस सी. ये क्या था? बर्ड्स थे. ठीक है, अब क्या है कि इनको रिसोर्स पार्टीशनिंग करनी है, तो ये क्या करेंगे? कहेंगे भाई सबको अलग अलग जगह पे जाना है. ये इस पोर्शन पे अटैक करेगा, ये इस पोर्शन पे, ये इस पोर्शन पे खाएगा, और ये वाला इस पोर्शन पे खाने लगेगा. तो सबके पोर्शंस डिवाइड हो गए, सेम ट्री के ही पोर्शंस डिवाइड हो गए. सबने अटैक एक ही ट्री पे किया, सबने अपनी फीडिंग एक ही ट्री पे करी, लेकिन उस ट्री के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन से वो फीड कर रहे हैं, तो उस वजह से वो कोएग्जिस्ट करेंगे. नाउ अनदर थिंग इज कि फीडिंग ऑन डिफरेंट इंसेक्ट स्पीसीज. अब देखो, हो सकता है कि अब इस ट्री के हम बात कर लेते हैं कि इसी ट्री पे अलग अलग तरह के स्पीसीज प्रेजेंट है. मान लो ये ट्री है, यहाँ पे एक इंसेक्ट स्पीसीज है जो ये वाला है, कुछ ऐसा दिखता है. यहीं पे एक इंसेक्ट स्पीसीज है जो ऐसा दिखता है. ये हम सिर्फ अपनी समझदारी के लिए, अपनी हाईलाइट हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम समझ पाए कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा है. फिर एक इंसेक्ट स्पीसीज है जो कुछ ऐसा दिखता है. देन वी हैव एन इंसेक्ट स्पीसीज जो कुछ ऐसा दिखता है. अब बर्ड्स को क्या करना है? फिर से अटैक करना है, फीड करना है, अपना खाना यहाँ से लेना है. लेकिन अब वो खाना कैसे लें? अब बर्ड क्या करेगी? एक बर्ड आके इसके ऊपर अटैक करेगी, एक बर्ड आके इस इंसेक्ट को खा लेगी,
दूसरी बर्ड आके इस इंसेक्ट को खाएगी और थर्ड बर्ड आके इस इंसेक्ट को खाएगी। तो क्या हो गया, यहाँ से भी उनके बीच में कंपटीशन खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ, कंपिटिटिव एक्सक्लूजन खत्म हो गया, कंपिटिटिव को एग्जिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि अगर एक ही इंसेक्ट के लिए वो फीड करते तो रिसोर्स की कमी पड़ जाती, इसीलिए डेफिनेटली एक स्पीसीज दूसरे को एक्सक्लूड कर देता। दिस इज द रीजन कि उन्होंने वहां पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज, इंसेक्ट स्पीसीज के ऊपर अटैक किया, तो दे competitively coexisted। and उन्होंने ऐसा कैसे किया, they did so by the use of resource partitioning। okay, now you have another phenomena that is character displacement। दो पॉइंट्स हैं कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट के। what are those two points? does not involve heritable change। कोई हेरिटेबल चेंज नहीं होता है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट में। ऐसा नहीं है कि जो भी चेंजेस होंगे वो इनहेरिट हो जाएंगे अगली जनरेशन के लिए। नो, दे डज नॉट इन्वॉल्व हेरिटेबल चेंज, दे आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग इवोल्यूशनरी टाइम स्केल। इवोल्यूशनरी टाइम स्केल पे इस तरह के चेंजेस, इस तरह की कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व किया गया है। Phenomena in which two species that live together in the same environment tend to diverge in those characteristics that overlap। कौन सा फिनोमिना है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट? जहां पे एक साथ रहने वाले दो स्पीसीज जो कि सेम एनवायरमेंट में रहते हैं, उनमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो जाता है, वो डाइवर्ज कर जाते हैं इन दोज कैरेक्टर्स दैट ओवरलैप। उन कैरेक्टर्स में वो डाइवर्ज कर जाते हैं जो कैरेक्टर्स उनके ओवरलैप करते हैं। मतलब मान लो कि दो बहुत ज्यादा सिमिलर स्पीसीज कांटेक्ट में आते हैं। आपको क्या मानना है कि कोई दो सिमिलर स्पीसीज हैं जो कि एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो उससे जब रिसोर्सेज लिमिटिंग है, देन स्पीसीज आर लाइकली टू compete स्ट्रांगली। जब उनके पास रिसोर्सेज लिमिटिंग होंगे तो जो दो सिमिलर स्पीसीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होगा। अगर आप इसको कहीं थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की या उनके डाइवर्स होने की बात हो रही है। आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एक एग्जाम्पल है फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल कैट, बैट, बर्ड, व्हेल, हॉर्स, ह्यूमन। उनके जो फोर लिम्स हैं दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो अभी अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए कि किस चीज की बात हो रही है डाइवर्स होने की। कि मान लो कि दो बहुत ज्यादा सिमिलर स्पीसीज हैं, उनके अंदर क्या बात करी है हमने कि कोई ऐसे कैरेक्टर हैं जो ओवरलैप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर लिम्स सबके सिमिलर है, तो वो जो ओवरलैप करते हैं उसमें वो डाइवर्स कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो दो सिमिलर स्पीसीज जो कांटेक्ट में आते हैं, जब रिसोर्सेज लिमिटिंग होंगे तो इन स्पीसीज में स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होगा, और इस स्ट्रॉन्ग कंपटीशन का एक पॉसिबल आउटकम है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। जो रिसोर्स पार्टीशनिंग थी वहां पे बात थी कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस की, ये कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे बात है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन की। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्यों होगा? क्योंकि दो सिमिलर स्पीसीज अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो वन विल कॉम्पिटिटिवली एक्सक्लूड अनदर वन। तो सुपीरियर जो है वो विक्टोरियस होता है, उसकी जीत होती है, जो इंफीरियर है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ईच पॉपुलेशन विल बी हैविंग नेचुरल सिलेक्शन। दोनों तरह की पॉपुलेशंस में नेचुरल सिलेक्शन हो जाए। जिन इंडिविजुअल्स का फिनोटाइप यानी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स उनको अलाउ करते हैं कि वो रिसोर्सेज को यूज कर सकें, उन रिसोर्सेज को जो दूसरे रिसोर्सेज ने, दूसरे स्पीसीज ने रिसोर्स यूज नहीं किए हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? पॉपुलेशन डाइवर्ज इन फिनोटाइप। फिनोटिपिक कैरेक्टर के बेस पे उस पॉपुलेशन की डाइवर्जेंस हो जाएगी ताकि वो रिसोर्स को यूज कर सके, एंड दिस इज what we call as character displacement. This is known as character displacement. When the greater number of competitive species will be there, then
In the habitat, each species search food on smaller part of total average habitat. बात कर ली हमने कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट और कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन की इन द केस जब दो सिमिलर स्पीसीज एक दूसरे के साथ हों और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हो जाए। अब एक नई टर्म की तरफ चलते हैं जो कि कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट से ही डिराइव हो रही है, एंड दैट टर्म इज इकोलॉजिकल कंप्रेशन। एंड व्हाट इज दिस इकोलॉजिकल कंप्रेशन? कि जब लार्जर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पीसीज किसी हैबिटेट में प्रेजेंट होंगे तो हर स्पीसीज उस टोटल एवरेज हैबिटेट के स्मॉलर पार्ट्स पे अपने फूड की सर्च में जाएगा। दिस इज नोन एज इकोलॉजिकल कंप्रेशन। उन्होंने अपने जो एरिया है जिसके ऊपर उनको फीड करना है उसको कंप्रेस कर लिया। दिस इज नोन एज इकोलॉजिकल कंप्रेशन। Group of species that exploit the biotic and abiotic resources in a similar way are known as guilds. ये एक another important term है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, and the term is guilds. क्या है? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है what are guilds? Then what are guilds? Group of species that exploit abiotic and biotic रिसोर्सेज इन अ सिमिलर वे। वो ग्रुप ऑफ स्पीसीज जो एक दूसरे से मिलते जुलते तरीके से ही उनके बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, दे आर नोन एज गिल्ड्स। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल होंगे उसको वो सिमिलर तरीके से यूज करेंगे और ऐसे ग्रुप ऑफ जो स्पीसीज होते हैं उसको बोला जाता है गिल्ड्स। ना ये बात हमने ऑलरेडी कर ली थी इस ग्राफ की, नीश ओवरलैप क्या है, नीश ब्रेड क्या है। अब ये एक एग्जाम्पल है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट का या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डार्विनियन फिंचेस दैट आई टॉक्ड अबाउट इन द लास्ट 2 क्लासेस। हमने बहुत बार इनकी बात की थी, डार्विनियन फिंचेस फ्रॉम गैलापागोस आइलैंड्स। सी किस किस तरीके से क्या क्या इनके अंदर डाइवर्जेंस हुई, कैसे कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट का रोल ये प्ले करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट पोर्शन अगर मैं बात करूं, देन वी हैव vegetarian tree finch, then we have large insectivorous tree finch, we have small insectivorous tree finch, woodpecker finch, warbler finch, cactus ground finch, sharp beaked ground finch, small ground finch, medium ground finch एंड द लार्ज ग्राउंड फिंच। ये जो 10 तरह की फिंचेस हैं, व्हाट आर दिस फिंचेस? दे आर अ टाइप ऑफ बर्ड्स। ओके, तो ये जो 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिंचेस हैं इनका एग्जाम्पल, दे आर अ वेरी नाइस एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब कैसे ये रोल प्ले करती हैं? व्हाट आर दीज डार्विनियन फिंचेस? लेट्स टॉक अबाउट दीज। बहुत डिटेल में आपको याद रखना जरूरी नहीं है, बट द कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड। तो बहुत सारे स्पीसीज, इनिशियली 18 स्पीसीज मिले थे। पैसराइन बर्ड्स भी बोलते हैं इन फिंचेस को। इनके इनिशियली 18 स्पीसीज मिले, डार्विनियन फिंचेस इनको बोला गया, गैलापागोस फिंचेस बोला गया क्योंकि इनको डार्विनियन ने फाइंड आउट किया इन द गैलापागोस आइलैंड्स। तो इनके अंदर क्या हुआ कि इवोल्यूशन देखी गई, दैट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि इनके जो बीक है, इनकी बीक का साइज एंड शेप that is highly adapted to different food sources. बीक का काम क्या होता है? फीड करना, फूड पे फीड करना, खाना है तो बीक का दे विल यूज बीक टू फीड ऑन द रिसोर्सेज। तो अब उसको खाने के लिए, अपने खाने को लेने के लिए इनकी जो बीक है, क्योंकि इनकी डिफरेंट डिफरेंट एडेप्टेशंस हैं। डिफरेंट एडेप्टेशंस का मतलब इनको अडॉप्ट करना किस लिए पड़ा? इनकी जो बीक का शेप और साइज है आप देखो,
ध्यान से इफ यू विल ऑब्जर्व तो इनकी सबकी बीक का जो शेप और साइज है वो डिफरेंट है। देखो इसकी बीक को देखो, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा कर्व्ड बीक है, उसके बाद इसकी स्मॉलर बीक है, उसके बाद इसकी लंबी और नुकीली बीक है, देन इसकी बहुत ज़्यादा शार्पली पॉइंटेड है, उसके बाद इसकी बीक भी डिफरेंट है, इसकी भी डिफरेंट है। हर एक फिंच की जो बीक है वो डिफरेंट शेप और साइज की है। यू कैन ऑब्जर्व इट सो वेल। ओके, तो इनकी जो डिफरेंट फूड सोर्सेज इनके होते हैं, क्योंकि ये हर एक तरह की फिंच अलग अलग तरह के खाने के ऊपर डिपेंड करती है, ये अलग अलग तरह का खाना लेते हैं, तो उसके बेसिस पे इनके बीक का शेप और साइज जो है वो भी अलग है। क्योंकि कुछ ट्री फिंचेस होती हैं जो ट्री पे डिपेंड करती हैं, ट्री से अपना खाना लेती हैं। कुछ क्या होती हैं जो ग्राउंड फिंचेस होती हैं, ग्राउंड पे प्रेजेंट होती हैं और ग्राउंड से खाना लेती हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे इनका एडेप्टेशन हुआ है। अगर मैं बात करूं वेजिटेरियन ट्री फिंच की, तो वो ट्री पे डिपेंड करती है बट इट्स फूड हैबिट इज वेजिटेरियन। देन वी हैव लार्ज इंसेक्टिवोरस ट्री फिंच, जो कि नाम ही बताता है कि इंसेक्ट खाती हैं, ट्री पे डिपेंड करती हैं, ट्री पे जो इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं उस पर डिपेंड करती हैं। देन अनदर वन इज ऑल्सो इंसेक्टिवोरस, लेकिन वो स्मॉल हैं, उनको स्मॉल इंसेक्ट्स पे फीड करना होता है, इसीलिए उनकी बीक का साइज भी स्मॉल हो गया है। दे आर स्मॉल इंसेक्टिवोरस ट्री फिंच। देन यू हैव वुड पेकर फिंच, जो वुड पे डिपेंड करती है, वुड को खाएगी, दैट इज वुड पेकर फिंच। और देन यू हैव वार्बलर फिंच, वार्बलर एक साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम पे इसकी डिस्कवरी हुई है, दैट इज वार्बलर फिंच। देन यू हैव कैक्टस ग्राउंड फिंच, ग्राउंड पे डिपेंड करता है, द हैबिटेट इज ग्राउंड एंड वहां से क्या खाती हैं, कैक्टस। देन यू हैव शार्प बीक्ड ग्राउंड फिंच। ठीक है, तो शार्प फिक्ड ग्राउंड फिंच क्या है, शार्प बीक्ड ग्राउंड फिंच क्या है, उसकी बीक जो है वो शार्प है, वो इस तरह के फूड को खाती है ग्राउंड से। देन यू हैव स्मॉल ग्राउंड फिंच, देन यू हैव मीडियम ग्राउंड फिंच एंड देन लार्ज ग्राउंड फिंच। तो जो ये ग्राउंड फिंचेस हैं इनका काम क्या है, दे कैन बी कैक्टस ईटर्स, और ये क्रशिंग बिल्स, सीड ईटर्स, सीड पे भी डिपेंड करती हैं। देन उसके बाद फ्रूट ईटर्स जो हैं, दे हैव पैरोटिक बिल। Then you have insect eaters and cactus eater as grasping bills and probing bills. ये different different type के उनके रोल्स हैं हैबिटेट में, किस तरीके से वो किस पे एक्ट कर रही हैं, जिसकी डिटेल हम एवोल्यूशन में पढ़ेंगे। So this was an example of divergent evolution and I hope it was so clear to you कि कैसे इन्होंने डाइवर्स किया और कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट इससे रिलेट कैसे करता है। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट की बात हुई, यू हैव गैलापागोस फिंचेस, जी फुलिजिनोसा, जी फोर्टीज, इनकी बीक की डेप्थ देखो, फिलिगिनोसा की कैसी बीक है, फोर्टीज की कैसी है, तो डिफरेंस है उनकी बीक की डेप्थ में। देन उसके बाद कुछ उनके ग्राफ्स ड्रॉ किए गए, एलोपेट्रिक सिम्पेट्रिक पॉपुलेशंस की बात की गई, एवोल्यूशन की टर्म्स हैं, जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो दिस वाज शोन कि कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट इनमें कैसे होता है। थैंक यू फॉर हैविंग टुडेज सेशन। This has been a very important session for your entrance point of view. I hope it was so much clear to you. If any doubt remains, then do comment down in the comment box, and you can also mail your doubts at botnylookout@gmail.com. And please keep watching, sharing and subscribing this channel, Ishita's Botanic. Thank you.